Dear students, welcome in science class. I hope you all are safe at your places. In previous sessions, students, we have discussed about the various types of asexual reproduction, binary fission, multiple fission, budding, fragmentation, regeneration, and spore formation. Okay, among them, two are left, that is vegetative propagation and tissue culture. Okay, so today we will know more about them. Before starting the today's session, I would like to share the learning outcomes that you are going to achieve after completing today's topic. Okay, so you will be able to explain vegetative propagation with examples. Okay, various examples you can be able to give. Assess the process of tissue culture, define sexual reproduction, appraise the significance of sexual reproduction, and compare two types of germ cells. Okay, so this much we are going today to discuss. Okay, so let's start with the today's session. So first of all, what is vegetative propagation? As we know that, students, plants, they are having two parts. One is the vegetative part and one is the reproductive part. Reproductive part कौन सा होता है? That is the flowers. Okay, that helps in the reproduction. And the vegetative parts are root, stem, leaf. Okay, so these are vegetative part. So what is vegetative propagation? From these vegetative parts to propagate or to produce the plants is called vegetative propagation. Okay, the new plants are obtained from the vegetative parts, root, stem or leaf of the plant is called vegetative propagation. It is of two types. ठीक है, one is the natural and other one is artificial. Naturally, जो हम naturally ही ऐसे ही उन plants को हम grow करते हैं from their root, stem और leaves, वो ऐसे ही grow होते हैं. Okay, artificially that we are doing. Okay, that artificially we are growing. So under natural में अब root, stem और leaf से कौन कौन से plants हैं जो grow होते हैं? The first one is with the help of the, अगर हम root की बात करें, the first one is with the help of root. Okay, in the root, the example is sweet potato. Sweet potato. It's a underground root. Okay, तो इसको आप क्या करते हो? These sweet potato, they are growing or vegetatively they are propagating from their roots. Okay, or with the help of the roots. Sweet potato is itself a root, modified root. Okay, see students, this is sweet potato. Okay, this is the underground root. Okay, अंडरग्राउंड रूट होते हैं, मॉडिफाइड रूट है और इनसे जो है इन्हीं रूट्स से आप क्या करते हो? प्रोपेगेट करते हो न्यू स्वीट पोटैटोज. ओके, इसको आप लेमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? शकरकंदी कहते हो. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट. द नेक्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स. ठीक है, कि आप स्टेम से कैसे न्यू प्लांट को प्रोपेगेट कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं अंडरग्राउंड स्टेम. लेट्स सी द एग्जांपल. स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट एग्जांपल है ट्यूबर ऑफ पोटैटो. ओके, पोटैटो इज द अंडरग्राउंड स्टेम. ठीक है, पर इसको ट्यूबर क्यों बोला है? इसको ट्यूबर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज द स्वोलन पार्ट जिसमें क्या स्टोर्ड है? आपके न्यूट्रिएंट्स और फूड इसने रिजर्व करके रखा है. ओके, दिस इज द ट्यूबर ऑफ पोटैटो. और स्टूडेंट्स, ये जो आपको इसमें डिप्रेशंस छोटे छोटे नजर आ रहे हैं ना, दीज आर कॉल्ड द आई. इसको हम आई कहते हैं. ओके, यहां से क्या राइज होते हैं? बर्ड्स राइज होते हैं. ओके, कई बार आपने देखा होगा पोटैटो अगर काफी टाइम के लिए ऐसे ही साइड पे पड़ा रह जाए तो उसमें छोटे छोटे बर्ड्स राइज हो जाते हैं. नाउ व्हाट वी विल डू, हम क्या करते हैं? इन पीसीस को इस बर्ड्स के साथ काटो. ओके, एंड प्लांट देम इन द सॉइल एंड यू विल गेट द न्यू पोटैटो प्लांट. Okay, so this is the vegetative propagation with the help of the stem.
tuber of potato. The next is bulb of garlic or onion. है तो क्या है, स्टेम ही है. ओके, सो अब हम इसमें देखते हैं. दिस इज द बल्ब ऑफ अनियन. ओके, बल्ब क्यों बोला है, बिकॉज इट इज द स्वोलन पार्ट. ओके, स्वोलन पार्ट है. बट अब इसमें क्या है, हियर द बड जो है ना बेटे, दिस इज द बड, ये रिड्यूस स्टेम है एंड इट इज कवर्ड विद द, दीज आर द स्केली और फ्लैशी लीव्स के साथ ये कवर्ड होता है. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बल्ब. तो आप इसको भी क्या करो, अनियन को प्लांट करो एंड यू विल गेट द न्यू प्लांट. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ rhizome ऑफ जिंजर. रिजोम हम पता किसको कहते हैं, दैट ग्रोज हॉरिजेंटली. ठीक है, जो हॉरिजेंटली सॉइल में ग्रो करते हैं दैट आर कॉल्ड रिजोम. तो उनमें भी ऐसे ही होता है, बर्ड्स अराइज एंड वी प्लांट देम इन द सॉइल. द नेक्स्ट इज कॉम. कॉम भी कैसा होता है, अंडरग्राउंड स्टेम ही है बेटे, मॉडिफाइड स्टेम है. कॉम क्या होता है, कॉम इट्स जस्ट लाइक अ बल्ब की तरह ही है. ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, इसमें वो स्केली और फ्लैशी लीव्स होते हैं. कॉम में सारा ही स्वोलन पार्ट जो होता है वो सॉलिड होता है. ओके, और उसने भी रिजर्व फूड तो किया, या रिजर्व फूड तो बेटे इन सब में ही है. ओके, तो कॉम का एग्जांपल जो है दैट इज कोलोकेशिया. कोलोकेशिया क्या होता है, अरबी खाते हैं ना, दैट इज कोलोकेशिया. ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम, जिनसे आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करके न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं. ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज विद द हेल्प ऑफ लीव्स. ठीक है, जिसमें आप लीव्स से क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं. द बेस्ट सूटेड एग्जाम्पल इज ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम में ऐसे प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं फ्रॉम देयर लीव्स. दिस इज द प्लांट ऑफ ब्रायोफाइलम. ओके, सो इसकी लीफ नोचेस पे क्या होता है, इस तरह से छोटे छोटे लीफलेट्स और बर्ड्स अराइज हो जाते हैं. ठीक है, एंड देन दे डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट प्लांट और प्लांटेड इन द सॉइल, और नया प्लांट जो है ब्रायोफाइलम वो अराइज हो जाता है. ओके, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ ब्रायोफाइलम. ठीक है, ये आपको बर्ड्स अराइज दिख रहे हैं, ये बर्ड्स. अंडरस्टूड? सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड अबाउट द नेचुरल vegetative propagation. The next is artificial methods of vegetative propagation that are done by the man or the plant growers or the horticulturist, ये सब करते हैं. Okay, so इसमें first type जो है that is cutting. Okay, first method is cutting. कटिंग में हम क्या करते हैं बेटे, आप किसी भी प्लांट की स्टेम या आप रूट जो है वो कट करके ले आते हो, पीस ले आओ एंड देन प्लांटेड इन द सॉइल एंड इट विल ग्रो, इट विल अराइज रूट्स एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. ओके, सो ऐसा आप बेटे रोज प्लांट में करते हैं. जैसे आपको किसी के घर में रोज बड़ा अच्छा खिला हुआ है, ब्यूटीफुल कलर्ड है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उनकी आप स्टेम का कोई भी एक पीस काट के ले आओ अलॉन्ग विद द नोड्स उसमें होने चाहिए. ठीक है, एंड देन प्लांट इन द सॉइल, घर लाके उसको सॉइल में प्लांट करो एंड यू विल गेट द रोज प्लांट. सो एग्जाम्पल्स आर रोज, जिसको आप कटिंग से कर सकते हो, ग्रेप्स, बनाना, शुगर केन, कैक्टस ऑल्सो, कैक्टस को भी आप कटिंग करके जो है वो ग्रो कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स दैट कैन ग्रो विद बाय द कटिंग प्रोसेस. द नेक्स्ट इज लेयरिंग. लेयरिंग में क्या करते हैं हम, जो प्लांट ग्रो करता है उसकी स्टेम को, जैसे प्लांट ग्रो किया उसकी स्टेम को फिर हम सॉइल में दबा देते हैं. ठीक है, एंड इट विल ग्रो द रूट्स, उसमें डेवलप कर जाती हैं रूट्स एंड इट विल स्टार्ट ग्रोइंग द न्यू प्लांट, और वो नया प्लांट बन जाता है. लेट्स सी द एग्जांपल. सी दिस पिक्चर. ठीक है, ये बेटे पिक्चर अपने आप देखो एक्सप्लेन कर रही है लेयरिंग के प्रोसेस को. द स्टेम, वन ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट इज गेट
हेल्ड इनटू द सॉइल, उसको सॉइल में आप प्रेस कर देते हो, दबा देते हो, और फिर धीरे धीरे क्या होता है उसमें रूट्स डेवलप कर जाती है एंड स्टार्ट ग्रोइंग द न्यू प्लांट, और न्यू प्लांट उससे अराइज हो जाता है. द एग्जाम्पल्स आर जैस्मिन एंड ग्रास. ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट आर ग्रोन विद द हेल्प ऑफ लेयरिंग मेथड. सो द एग्जाम्पल्स आर जैस्मिन and grass. Okay, the third method is grafting. Third process कौन सा है? Grafting. What we will do in grafting students? Grafting में हम क्या करते हैं, हम कोई भी दो plants जो closely related हैं उनको आप select कर लेते हो, ठीक है, for their good qualities. तो आप एक plant का root वाला system ले लेते हो, ओके, एंड दैट इज कॉल्ड द स्टॉक, और वो सॉइल में ही रहता है, दैट इज कॉल्ड द स्टॉक. जिसका रूट सिस्टम अच्छा है आपने उसका ले लिया रूट पार्ट, दैट इज कॉल्ड द स्टॉक. और जिसका शूट वाला पार्ट अच्छा है, फ्लावरिंग क्वालिटी अच्छी है, उसका आप पार्ट ले लेते हो, ऊपर वाला स्टेम वाला पोर्शन ले लेते हो, दैट इज कॉल्ड द स्योन. उसको आप क्या कहते हो? स्योन कहते हो. नाउ व्हाट वी विल डू, आप इस तरह से इन दोनों को क्या कर दोगे? टाई कर दोगे. ओके, हम इनको इकट्ठा बांध देते हैं, रैप कर देते हैं, वेक्स्ड कर देते हैं, या इसके ऊपर क्ले के साथ इनको अच्छे से बाइंड कर देते हैं. नाउ व्हाट हैपन, धीरे धीरे क्या होगा, इसके सेल्स जो हैं वो ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, एंड आप बेटे इनको इस तरह से प्लेस करते हैं कि जो इनके टिश्यूज हैं, जो इसका कैम्बियम है, दे गेट कनेक्टेड, दोनों का. ठीक है, कैम्बियम क्या होता है? जहां से आपके जाइलम, फ्लोएम पार्ट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं. इट इज द टिश्यू प्रेजेंट इन द, एक तरह से टिश्यू है इन द प्लांट्स. ओके, सो आप इसकी रैपिंग कर देते हैं ताकि कोई पैरासाइट या पैथोजन जो है वो इसको खराब ना कर सके, लॉस ऑफ वाटर ना हो, एंड द स्लोली आफ्टर स्लोली इट विल ग्रो और डिफरेंशिएट एंड इट विल डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्राफ्टिंग. इस तरह से हम ग्राफ्टिंग करते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लांट्स दैट आर ग्रोन बाय ग्राफ्टिंग: एप्पल, पियर, पीच, मैंगो. ओके, सो दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स दैट आर ग्रोन विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ्टिंग. Okay, so this is all about the various methods of vegetative propagation. Let's discuss its advantages and disadvantages. Now see the advantages of this vegetative propagation. It is a quick method, it is easier and cheaper than collecting seeds. Okay, plants produced, मेजर जो इसका है कि इसमें कोई वेरिएशन नहीं आती है. यू विल गेट द जेनेटिकली सिमिलर, आपको पेरेंट प्लांट के जैसा ही नया प्लांट मिलता है. प्लांट्स रेज्ड बाय दिस मेथड कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड बाय सीड्स, क्योंकि सीड जर्मिनेट करेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा एंड देन फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा, फ्रूट्स बनाएगा. सो दैट विल टेक टाइम. सो इट इज, आप कह सकते हैं क्विक मेथड है. एंड इट ऑल्सो मेक्स द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स जो सीड्स नहीं बना सकते हैं या जिनके पास लेस कैपेसिटी है टू फॉर्म द seeds. So these are the advantages. Now let's see the disadvantages. So these are the disadvantages as क्योंकि आप बेटे जेनेटिकली सिमिलर आपको पेरेंट के जैसा ही आपको नया प्लांट मिलता है, तो कोई आपको जेनेटिक वेरिएशन उसमें नहीं मिलेगी. तो आप ये नहीं कह सकते कि वो गिवन एनवायरनमेंट में या जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा तो उसकी अडेप्टेबिलिटी कैसी होगी. दे कैन ईजिली गेट डैमेज ड्यूरिंग स्टोरेज, क्योंकि प्लांट्स हैं, ठीक है, वो इजीली क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं. द प्लांटलेट्स ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड आर डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट देन सीड्स. सीड्स तो आप पैक करो और इजीली उनको ट्रांसपोर्ट कर दो. दे आर मोर लाइकली टू कैरी डिजीज फ्रॉम देयर डिजीज्ड पेरेंट. अगर उनके पेरेंट में कोई डिजीज है तो आगे वाली जनरेशन में भी वो डिजीज ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज सीड्स ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी मे नॉट बी फॉर्म्ड. ठीक है, जिस क्वालिटी का आप सीड चाहते हो आप उसमें वो क्वालिटी इंट्रोड्यूस्ड नहीं कर सकते हो या आपको ना भी मिले. These methods can be used to produce only those plants which cannot produce seeds, और जिनके सीड्स जो हैं वो एबल नहीं होते हैं कि वो अच्छे से वाइबिलिटी, उनका जो सर्वाइवल है वो उतना अच्छा नहीं होता है. ओके, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस एंड दिस इज ऑल अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. द नेक्स्ट मेथड इज द टिश्यू कल्चर. सो टिश्यू कल्चर बेटे कहाँ होता है, ये लैब्स में किया जाता है. ओके,
तो टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, वी आर रिमूविंग टिश्यूज और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम ग्रोइंग टिप्स, एज वी आर knowing that the tips they are having the cells or the tissues that are having the tendency to divide, okay, meristematic tissues. तो आप उन टिप्स में से उनको निकाल लेते हो और उनको आर्टिफिशियल मीडियम में रख देते हो, ठीक है. इन द लैब्स वी आर प्लेसिंग दैम इन द आर्टिफिशियल मीडियम, देन they grow rapidly and form a small group of cells that is called the callus. उसको हम ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कह देते हैं, callus. एंड देन दिस callus इज ट्रांसफर टू द अनदर मीडियम, जिसमें पर्टिकुलर हार्मोन्स हम डाल देते हैं और न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, ओके. एंड इन दिस आप बेटे हार्मोन्स हम अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स वी आर फाइंडिंग इन इट, और किस तरह के हम इंड्यूस करना चाहते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन यूज द हार्मोन्स, और पर्टिकुलरली जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो तो हम यूज करते ही हैं. फिर यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाते हैं, एंड दैट प्लांटलेट्स आर प्लेस्ड इन द सॉइल सो दैट दे ग्रो इनटू अ मेच्योर प्लांट और दे ट्रांसफर टू द फील्ड्स ऑल्सो, ठीक है. सो इस तरह से ये जो आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स होते हैं, पीए होती है, ये यही काम करते हैं, ठीक है. सो आपका जितनी भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन दीज टाइप ऑफ कल्चरिंग, ओके, एंड दे आर ग्रोइंग द न्यू वेराइटीज, ओके. फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. यहाँ पे देखो हमने टिश्यू सैंपल ले लिया है और उसको किस में रख दिया है, ग्रोथ मीडियम में रख दिया है. दैट इज मेनली वी आर यूजिंग द अगार, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एल्गी, ठीक है. ऑक्सिन जो है दैट इज द ग्रोथ हार्मोन, ओके. एंड फिर इसमें क्या होता है, छोटे छोटे प्लांटलेट्स डेवलप हो जाते हैं, एंड उसको जब आप एक अनदर मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं इन द न्यूट्रिएंट मीडियम ऑल्सो, सो आप उसको क्या करते हो, फिर प्लांटलेट्स अराइज हो जाते हैं और उन प्लांटलेट्स को आप किस में लगा देते हो, सॉइल में लगा देते हो. फिर यहां से इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है इन द फील्ड, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द टिश्यू culture process. Now what are the advantages of this method? The new plants can be grown from one parent in disease free conditions, ठीक है. वो डिजीज फ्री मतलब वेजिटेटिव में हमें क्या डिसएडवांटेज था कि डिजीज है पेरेंट तो आगे भी डिजीज ही होगा, पर इसमें ऐसी कोई भी आपको डिसएडवांटेज नहीं मिलती है. पेरेंट्स अगर डिजीज है तो नेक्स्ट जो है वो डिजीज्ड नहीं होगा, बिकॉज वी आर यूजिंग द केमिकल्स और हार्मोन्स अकॉर्डिंगली, okay. And it is used commonly it is used for ornamental plants, उनकी growing के लिए हम use करते हैं. The some of the example of the plants that are growing by this method, orchids, dahlia, chrysanthemum, etc. Okay. So in this way students, we have studied all the methods that are included in the asexual reproduction. Now next we will start with the sexual reproduction, okay. In sexual reproduction students, the offsprings produced by the fusion of two gametes, okay. The two gametes are formed by male and female. One is the male gamete and other is the female gamete, okay. In simpler or lower organisms, these two gametes are similar or a little bit different for each other, okay. But as the complexity of the organism increase, these also become specialized. These gametes, male gamete that is smaller in size and female gamete that is larger in size. Male gamete is motile, can move. Female gamete non-motile, it cannot move. Male gamete do not have stored food, but the female gamete that is having the stored food, as after fusion zygote will formed and it will get food from this, it will get food that is stored in the female gamete, okay. Now as we all know that gametes are formed by meiosis. We have studied in 9th standard the gametes, they are formed by meiosis. We have studied that there are two types of cell divisions. Cell divisions that are of two types. One is mitosis, one is meiosis. Meiosis takes place in germ cells. Germ cells to form gametes or to make gametes, okay. Mitosis takes place in somatic cells. Somatic cells that are responsible for the growth and
development. Okay, and in meiosis it is also known as reductional division. Reductional, why reductional? As the number of chromosome get half. In the gametes, mitosis में क्या होता है? It is the equational division. Equational means the number of chromosomes remain same. Okay, so बेटे as we know that the chromosomes always present in pairs, वो pairs में present होते हैं. तो when double or two sets of chromosomes are there, two sets of chromosomes are present, ऐसी situation को हम कहते हैं diploid, that the cell is diploid. Okay, reductional means half हो गए, that means it is having one set of chromosomes. One set of chromosomes, then it is haploid. हम इसको क्या कहते हैं? Haploid. Haploid is denoted by small n and diploid is denoted as 2n. Haploid means one set of chromosome and diploid means double or two sets of chromosomes. ठीक है, अब बेटे द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई गैमीट्स में ही क्यों ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं? व्हाई देयर इज नीड ऑफ दिस रिड्यूस्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमीट्स? सी व्हाट हैपन्स इफ द गैमीट्स में अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ ना होते तो क्या होता? लेट्स अज्यूम द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स. हम ह्यूमन बींग्स की अगर बात करते हैं, and we know that in any species they are having the fixed number of chromosomes, constant होता है. Human beings means जितने भी individuals human beings में आते हैं that are having, human beings कोई भी है बेटे, किसी भी country का है, that are having 46 chromosomes. उनमें कितने chromosomes हैं? 46. means same species के, एक ही species के सभी members के number of chromosomes are same, 46 और 23 in pairs. ठीक है, अगर गैमीट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ ना होते देन व्हाट वुड हैपन? क्या होना था? मान लेते हैं 46 इन मेल गैमीट, 46 मेल गैमीट में रहने थे, 46 फीमेल गैमीट में, और दोनों ने जब फ्यूजन करना था, फर्टिलाइजेशन होनी थी, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाने थे? 92. पर 92 क्रोमोसोम्स वाला तो ह्यूमन बींग्स है ही नहीं. फिर क्या होना था? ये तो एक बार इंक्रीज किया तो नेक्स्ट टाइम तो और इंक्रीज करते रहने. तो इस तरह से क्या होना था? सेलुलर अपरेटस और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो था वो सारा डिस्टर्ब्ड हो जाना है. एंड सच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. वो सर्वाइव नहीं कर सकता था. तो क्या होना था? पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होनी थी? सो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए नेचर हैज गिवन द सॉल्यूशन. उसने सॉल्यूशन दिया है. क्या सॉल्यूशन दिया है? कि गैमीट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या कर दो? हाफ हो जाए बाय meiosis, बाय द रिडक्शनल डिवीजन. सो व्हाट हैपेंस? 23 मेल गैमीट में होते हैं और 23 ही फीमेल गैमीट, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे विल रिगेन देयर नंबर, टोटल नंबर, दैट इज 46. ठीक है, सो दिस हैपन्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जब गैमीट्स बनते हैं, अब देखो दो जेनेटिक मटेरियल फ्यूज कर रहे हैं, वन इज फ्रॉम द मेल एंड वन इज फ्रॉम द फीमेल. दैट मीन्स नंबर ऑफ वेरिएशंस इंक्रीज कर जाते हैं. ठीक है, आपको ज्यादा वेरिएशंस नजर आती हैं. ओके, एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये जो वेरिएशंस हैं दे गेट अकोमुलेट होती जाती हैं और धीरे धीरे जो है वो चेंजेस ह्यूमन बींग्स में या इंडिविजुअल्स में नजर आने शुरू हो जाते हैं. सो दैट इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट गिव्स more variety of the characters or diversity of characters in generation. It promotes, आप लिख सकते हैं significance, promotes diversity in characters.
Okay, or more chances of variations. More chances of वही diversity हो गया, more chances of variations बढ़ जाती हैं. Okay, we have talked about fertilization, that is the fusion of male and female gamete. So fertilization is of two types, external and internal. Okay, external means the fertilization takes place outside the body. बॉडी से बाहर हो रही है. ऐसा किसमें होता है? aquatic animals like pisces and amphibians. So इनमें क्या होता है? They release their gametes in the surrounding water and the fertilization takes place in the water. Okay, that is external fertilization. Internal fertilization means the fertilization takes place inside the female's body. ठीक है, इसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं. द एग्जाम्पल्स आर आपके रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स. ओके, इन सब में कौन सी होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. Okay, so this is all about today's session. Revise it properly and take care. Bye bye.